Hello 9th class students, welcome you all once again in your online classroom of History and Civics. Hope all of you are fine at your home. Students, this is the second part of our chapter Jainism and Buddhism, and I am today going to start the topic Jainism. Today I will cover the life sketch of Vardhamana Mahavira and the doctrines of Jainism. In the Jainism, students, there were mainly 24 तीर्थंकरास. 24 तीर्थंकरास, देखो 24 था ये. There were 24 तीर्थंकरास in the Jainism. तीर्थंकरास means the spiritual heads. The spiritual heads of Jainism were total in number. There were 24. ऋषभदेव was the first. ऋषभदेव जो ऋषभदेव थे, he was the first तीर्थंकरा and Vardhamana Mahavira was the last. As students, Vardhamana Mahavira is considered as the real founder of the Jainism. Now, the life sketch of the Vardhamana Mahavira. First of all, this is the date, the birth date of Mahavira, that is 540 BC, and his death was in the year, he was died in the year 468 BC. You know it very well that BC, in the case of BC, when we are talking about the before Christian era, then it goes as a decreasing order. It goes into a decreasing order. जब भी हम देखो BC की बात करते हैं तब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, ठीक है. तो महावीरा का जो बर्थ हुआ था, इट वाज अकर्ड इन द ईयर 540 BC एंड ही वाज डाइड इन द ईयर 468 BC. ही वाज बोर्न एज वर्धमाना, मीन्स रियल नेम वाज वर्धमाना, एंड इन क्षत्रिय फैमिली, हमने वेदास में किया था दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास. एंड क्षत्रियस का वर्क क्या था? टू प्रोटेक्ट द ट्राइब. तो इन्होंने क्षत्रिय फैमिली में बर्थ लिया था एट कुंडग्रामा नियर बिहार. बिहार के नियर कुंडग्राम एक प्लेस है जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था एज द वर्धमाना. ही गॉट मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा. ये खुद भी देखो एक प्रिंस थे. वर्धमाना वाज हिमसेल्फ अ प्रिंस एंड ही आल्सो मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा. देन आफ्टर दिस he left home at the age of 30. तो 30 years की एज में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था. he left his home, his wife, and even he had a daughter. he left his family life and wandered about in search of truth. तो means he wandered in the different places of the India in the search of truth. Then after 12 years of hard meditation, तो उन्होंने काफ़ी hard meditation की, and finally after 12 years he obtained supreme knowledge. So 12 years की hard meditation के बाद इनको supreme knowledge मिली. he came to be called as जिन्ना. तो यहाँ पर इनका नेम जिन्ना पड़ा. he came to be known as जिन्ना, ठीक है. and his followers came to be known as Jains. तो यहीं से जो इनके followers थे, जो इनके like disciples थे, they were called the Jains. Mahavira preached Jainism for 30 long years. तो नेक्स्ट 30 years जब इनको ये ट्रू नॉलेज मिली, सुप्रीम नॉलेज मिली, आफ्टर दिस ही प्रीच्ड जैनिज्म. प्रीच का मीन्स क्या होता है? प्रोवाइड द टीचिंग्स टू गाइड द पीपल अबाउट द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म. तो ये लोगों को गाइड करते रहे, लोगों को एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया लाइक इन मगधा, मिथिला, अंगा, कोसाला एंड अदर प्लेसेस ऑफ द इंडिया फॉर द नेक्स्ट 30 years. He died in the year 468 BC at the age of 72. तो 72 years के थे जब इनकी डेथ हुई थी इन पावापुरी. पावापुरी कहाँ पर है? नियर राजगीर इन बिहार. तो बिहार में ही एक प्लेस है राजगीर जहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी इन द ईयर 468 BCE. तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ स्केच ऑफ द वर्धमाना महावीर. नेक्स्ट इज अबाउट द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म. द डॉक्ट्राइन्स क्या थे जैनिज्म के? There are mainly 3 doctrines of Jainism. First of all, the Triratnas. देखो Triratnas क्या था? It was actually 3 jewels.
ये महावीरा के देखो 3 ज्वेल्स थे. ही गाइडेड द पीपल टू फॉलो these 3 रत्नास, these tri-रत्नास in their life. What was that one? First of all देखो right belief, कि जो belief है हमारा किसी भी चीज़ में, we must have the right belief in the things. Right knowledge, we must have the right knowledge, and then right conduct, कि जो भी हमारी वर्किंग होती है, जो भी हमारा आचरण व्यवहार होता है वो हमेशा right होना चाहिए. तो these are the tri-रत्नास, 3 ज्वेल्स थे जैनिज्म के. right belief, right knowledge and right conduct. Next is the 9 तत्वस या फिर 9 principles और 9 truth के बारे में बात की है महावीरा ने, जो कि एक फिलोसफिकल मेन फिलोसफी का इनकी जो मेन टीचिंग्स का पार्ट है जैनिज्म लिटरेचर की. फर्स्ट ऑफ ऑल जीव क्या होता है? सोल. देखो हमारे हम कहते हैं कि हम सब में एक सोल है, एक आत्मा है, ठीक है. तो जीव यहाँ पर उसके लिए एक टर्म यूज की गई है जीव मीन्स सोल. अजीव मीन्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. जो भी हमारी मटेरियल थिंग्स होती हैं लाइक टेबल है, क्लोथ्स हैं, जिनमें मीन्स सोल नहीं है, जो ठीक है, दैट आर कॉल्ड द नॉन लिविंग थिंग्स, अजीव. नेक्स्ट इज द असरवा मीन्स गुड डीड्स, जो हम गुड काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द असरवा. बंध मीन्स बंधे होना. देखो बंध का मीनिंग क्या होता है? हम बंधे हुए हैं. बॉन्डेज ऑफ कर्मा क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, चाहे हम अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं. बॉन्डेज ऑफ कर्मा, कि कर्मा के साथ सभी बंधे हुए हैं. इनके यही गाइडेंस थी दैट वी मस्ट डू द गुड कर्मा. अगर हम अच्छा कर्म करेंगे हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं हमें उसका बुरा फल मिलेगा. तो बॉन्डेज ऑफ कर्मा कि हम सभी कर्म से बंधे हुए हैं. पुण्य क्या होता है? मीन्स जब हम कुछ गुड करते हैं उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, दैट इज कॉल्ड द पुण्य. पाप मीन्स सिन, बुरा करेंगे उसका बुरा मिलेगा फल हमें, पाप सिंस. संवरा मीन्स हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ कर्मा के वे में जो रुकावट होती है, जो भी हिंड्रेंसेस होंगे, दैट इज कॉल्ड द संवरा. नेक्स्ट इज द निर्जरा मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास. जब कर्मा से कोई दूर हो गया है, डिस्ट्रक्शन हो गई है कर्मा से, दैट इज कॉल्ड द निर्जरा. मोक्ष मीन्स सल्वेशन. देखो मोक्ष का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड बहुत बार यूज होगा जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी, सल्वेशन या फिर मोक्ष. एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि हमारा इस टाइम बर्थ हुआ है तो हमारा फिर से हमारी डेथ हो जाएगी, डेथ के बाद फिर से रीबर्थ होगा. हमारा एक पिछला जन्म भी था, सुना होगा आपने. तो मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ दिस लाइफ एंड डेथ. तो जो बार बार हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, उससे फ्री हो जाना. फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल, जो ये साइकिल चलता है हमारी लाइफ और डेथ का, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, दैट इज कॉल्ड द साल्वेशन और मोक्ष. तो दीज आर द 9 तत्व और प्रिंसिपल्स: जीव, अजीव, असर्वा, बंध, पुण्य, पाप, संवरा, निर्जरा एंड द मोक्ष. थर्ड इज द 5 वॉज थे. अब इन्होंने गाइड किया था लोगों को दैट टेक द 5 वॉज, अडॉप्ट द 5 वॉज इन देयर लाइफ, दैट इज द नॉन वायलेंस का मीनिंग क्या होता है? अहिंसा. मीन्स हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, चाहे कोई छोटा सा जीव है, चाहे एनिमल्स हैं, इवन स्मॉल क्रिएचर्स हैं अर्थ पर. वी मस्ट नॉट किल एनीवन हु हैव द सोल. जिसमें भी सोल है, जिसमें भी आत्मा है, जिसमें भी लाइफ है, हमें उसके मारने का कोई हक नहीं है. दैट इज अ नॉन वायलेंस. नॉट गेटिंग टू अटैच्ड, हमें मटेरियल थिंग के साथ या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है उनके साथ हमें ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए. ठीक है, ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए हमें किसी के भी साथ. नॉट टेलिंग लाइज, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. नॉट टेलिंग लाइज. नॉट स्टीलिंग, किसी की और प्रॉपर्टी है, किसी की और चीज़ है, किसी की थिंग है, किसी को हमें उसको चुराना नहीं चाहिए. नॉट टू स्टील एनीथिंग. ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. जैसे कि मॉन्क्स एंड नन्स होते हैं जो कि मीन्स मैरिड लाइफ जो अपनी इंजॉय नहीं करते हैं, एंड दे go to the for the hard meditation and adopt the brahmacharya. ठीक है, मीन्स नॉट टू फॉलो द मैरिड लाइफ, दैट इज कॉल्ड द ब्रह्मचर्य.
तो these are the 5 O's: non-violence, not getting too attached, not telling lies, not stealing, and the brahmacharya. So students, this is all about today. Hope you understand it. If you have any query, then we will discuss in our Zoom app क्लासरूम. ऑनलाइन जो भी हमारी क्लासरूम होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपको कोई क्यूरीज होती है तो. होप फॉर योर बेस्ट. हैव अ नाइस डे. गुड बाय ऑल ऑफ यू.